एक्झाम्पल कोण बोलणार आहे आज? एक्झाम्पल रात्री 10:30 रे, रात्रीचे 10:30. प्रसन्ना चव्हाण. ओके, प्रसन्ना. ठीक है, चलो. यस सर. बोला बेटा. प्रसन्ना. वा, काय व्हिडिओ ऑन जबरदस्त. सर. करा ना व्हिडिओ. तुझा बढिया आहे, तुझा डीपी छान आहे. व्हिडिओ ऑन करा. सर नाही होते. ठीक आहे, एकच मिनिट थांब. आता करा. यस सर, डन सर. यस, डन. चलो. Phylum Porifera, Cycon, Skypa, Spongula, freshwater sponge, Euspongia, bath sponge, Phylum Coelenterata, Physalia, Portuguese man of war, Adamsia, sea animo, Penantula, sea pen, Gorgonia, sea pan, Meandrina, brain coral, Phylum Tinophora, Plurobranchia, Tinoplana, Phylum Platyhelminthes, Tenia, tapeworm, Fasciola, liverpube, Planaria, generation, Phylum Aschelminthus, Ascaris, roundworm, Ucheria, filaria worm, Ancylostoma, hookworm, Phylum Annelida, Nereis, Ferretima, earthworm, Hirudinaria, bird-sucking leech, Phylum Arthropoda, economically important insect. Annelida, Annelida राहिला, Annelida. Phylum Annelida. Phylum Annelida, सर घेतलं होतं ना मी. घेतलं होतं, बरं सॉरी, माझं लक्ष नसतं ना. Phylum Annelida, Nereis, Ferretima, earthworm, Hirudinaria, blood-sucking leech, Phylum Arthropoda, economically important insect. Apis, honeybee, bomb-bee, silkworm, lassifer, lac-insect, vectors, Anopheles, malaria, culex, Aedes, chikungunya, Aedes, yellow fever, Aedes, dengue, gregarious pest, Locusta, locust, living fossil, limulus, king crab. Phylum Mollusca, Pila, apple snail, Pintada, pearl oyster, Sepia, cuttlefish, Loligos, squid, Aplysia, sea hare, octopus, devilfish, Dentalium, tusk shell, Chitopleura, chiton, Phylum Echinodermata, Asteris, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumaria, sea cucumber, Ophiura, brittle star, Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus, Phylum Chordata, subphylum Urochordata, Ascadia, Salpa, Doliulum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, class Cyclostomata, Petromyzon, lamprey, Maxion, hangfish, class Chondrichthyes, Scalidon, dogfish, Priestis, sawfish, Corcodron, great white shark, Trigon, stingray, class Ostichthyes, marine fishes, Exaciatus, Exocetus, Exocetus, say Exocetus. sorry, Exocetus, flying fish, hippocampus, sea horse, freshwater animals, Lebio, rohu, catla, clarius, magur, aqueous animals, betta, fighting fish, pterophilia, angelfish, class amphibia, buffo, toad, rana, frog, hyla, tree frog, salamander, echinophis, limbless amphibia, class reptilia, Chelon, turtle, testudo, tortoise, Samulon, tree lizard, Colitis, garden lizard, crocodilus, crocodile, alligator, Hemidoctylus, all lizard, poisonous snakes, Naja, cobra, Bangaroos, crate, Vipera, viper, class Aves, Corvus, crow, Columba, pigeon, Pictada, parrot, Struthiostyles, ostrich, spa, peacock, aptenoids, penguin, neophron, vulture. Class Mammalia, oviparous animals, Ornithoparus, Ornithorhynchus, platypus, viviparous animals.
macropus, kangaroo, pteropus, flying fish, camelus, camel, macaca, monkey, ratus, rat, canis, dog, felis, cat, elephas, elephant, equus, horse, delphinus, common dolphin, balanoptera, blue whale, panthera tigris, tiger, panthera leo, lion. Thank you, sir. थँक्यू प्रसन्ना चव्हाण, थँक्यू सो मच. कुठून आहेस बेटा तू प्रसन्ना? From Gevrai district. गेवराई का? Gevrai Beat district. आमचं बीड. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा. ठीक Thank you, आहे. BPL बीड परभणी लातूर. ओके, Yes. त्याच्यामध्ये एक कॉमन आहे तुझ्यात आणि माझ्यात, परभणी आणि बीड. चलो, थँक्यू सो मच, बहुत ही बढ़िया प्रसन्ना, थँक्यू Yes, sir. थँक्यू थँक्यू. सो चलो बात करते हैं दोस्तों. वी आर डीलिंग विथ टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बिफोर दैट, ओके, कल फ्रेंडशिप डे था और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है अपने फ्रेंड्स के लिए. नाउ व्हाट इज फ्रेंड्स? तो एनी पर्सन इन आवर लाइफ, okay, with which we are comfortable, that is our friend. It may be our mom, dad, और अपना भाई या फिर अपनी सिस्टर, कोई भी हो सकता है ज्याच्यासोबत आपण कम्फर्टेबल आहोत, ते आहे फ्रेंड्स. लक्षात ठेवा. तर ह्या जागतिक मैत्री दिनाच्या आणि ह्या फ्रेंडशिप डेच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. ठीक आहे, लक्षात असू द्या. आणि मग स्कूल लेवलचे फ्रेंड असतात, 11वी-12वी मध्ये फ्रेंड्स होतात, ग्रॅज्युएशन लेवलला पण फ्रेंड होतात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलला पण फ्रेंड होतात. ज्यावेळेस तुम्ही बिझनेस मध्ये येता, बिझनेस फ्रेंड पण असतात, फॅमिली फ्रेंड्स असतात, अलग अलग टाईप आहे. काही फ्रेंड्स खूपच आपल्या जवळ असतात, आपण प्रत्येक गोष्ट त्यांच्यासोबत शेअर करतो आणि हे एवढं जबरदस्त नातं आहे, याच्या खालीच सगळे नाते आहेत. लक्षात ठेवा. म्हणजे प्रत्येकाची एक व्हॅल्यू आहे, पण हे सगळं डिपेंड आहे ह्या फ्रेंडशिपवर. आपण किती गिव्ह म्हणजे देतो, त्याच्यावर आपल्याला किती चांगले लोक मिळतात ह्याच्यावर असतं. फ्रेंडशिपचं असं आहे, देणं लागतं खूप जास्त फ्रेंडशिपमध्ये. देणारा पाहिजे, त्याला खूप कधीच फ्रेंड्स कमी पडत नाहीत. आणि ह्या फ्रेंडशिपमध्ये लक्षात ठेवा, एक खूप चांगलं सॉन्ग आहे जे आमच्या कॉलेजच्या वेळेस, त्याच्या अगोदरच आलेलं, पण आम्ही कॉलेजमध्ये असताना त्याला मी खूप वेळेस ऐकलेलं आहे. के नावाचे एक सिंगर आहेत, तुम्ही जर नाव ऐकलं असेल कधी तर, के. ठीक आहे, के मेनन नव्हे किंवा किशोर कुमार सुद्धा नव्हे, त्यांचं नावच आहे के नावानेच ते फेमस आहेत. त्यांनी खूप चांगले चांगले गाणे म्हटलेले आहेत. तर त्यांचं एक गाणं आहे, मी ते आज गाणं म्हणतो तुमच्यासाठी. अँड डेडिकेटेड टू ऑल फ्रेंड्स अँड फ्रेंडशिप इन वर्ल्ड. आलं लक्षात? तर ते गाण्याचे बोल असे आहेत, लक्षात ठेवा. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार. यारो मोहब्बत तो भी बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार. तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी हो तेरी खुशी में, अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार. थैंक यू सो मच, थैंक यू, डेडिकेटेड टू ऑल फ्रेंड्स. तो बात करते हैं दोस्तों, ओके,
बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे आज, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में। और हमने अभी तक बॉडी फ्लूइड के बारे में बात की है, और देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, वन इज द ब्लड, दैट इज द मोस्ट कॉमन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी, एंड अनदर इज दोस्तों, अनदर इज दैट इज अ लिम्फ। ओके, थैंक यू। ये गाना आप अगर सुना नहीं है आपने तो जरूर सुनो, ये गाना अगर सुना नहीं है तो बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है। ओके, थँक यू, थँक यू। माझे फ्रेंड्स भरपूर होते, गवते आहे, आमले आहे, प्रवे आहे, निल्या, रव्या, खूप सारे. अण्णा नावाचा एक फ्रेंड होता, आप्पा पण एक फ्रेंड आहे, खूप सारे फ्रेंड होते आमचे, मुली पण होत्या ऍज अ फ्रेंड म्हणून. ओके, हे बढ़िया असतं. चलो आगे बढ़ते दोस्तों. सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक बीएफसी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और हम आज से बात करने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में, और टॉपिक है दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे. Now, what are the circulatory pathway? There are different circulatory pathway, okay, in our body. There are or in the different organism, circulatory pathway. Basically, अगर देखा जाए तो there are two pattern of circulation. One is the open circulation, another is the closed circulation. There are two type of circulatory system: open circulatory system and closed circulatory system. याद रखो. Types of circulatory system. Types of circulatory system, types of circulatory system. और वो जो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, लिम्फ नोड एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जहां पे लिम्फोसाइट भी बनते हैं. ओके, लिम्फ नोड नाम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है बॉडी में. ओके, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. In AK, I already mentioned about the open and closed circulatory system. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. What is meant by दोस्तों open circulatory system? Open circulatory system, it is a less developed circulatory system होता है. और दूसरा जो हम में है और बहुत सारे एनालिड्स और कॉर्डेट में है वो होता है दोस्तों that is a closed circulatory system. इसे कहते हैं closed circulatory system. Closed circulatory system, याद रखो, closed circulatory system. ये दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है. Now what happen in open circulatory system, that hearts pump the blood, okay, via large vessel directly into body cavity, उसे कहते हैं sinuses. So what is meant by open circulatory system? यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, hearts blood pump करता है via large blood vessel directly into body cavity, और that is called as दोस्तों sinuses. और in closed circulatory system, the heart pumps the blood vessel, okay, via a network of a branched vessels, that is artery, veins and capillaries. In open circulatory system, the organ or tissue, they are directly, okay, surrounded by blood, they are directly bathed in blood. But in closed circulatory system, that organ or tissue, they are not in direct contact with the blood. Okay, there is a tissue fluid surrounding the organ or tissue. फिर हमने देखा कि दोस्तों ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज अ लेस रेगुलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसका एडवांटेजेस ये है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का, दिस इज अ मोर रेगुलेटेड. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेल रेगुलेटेड सिस्टम है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा दोस्तों, इट इज एन वेल रेगुलेटेड सिस्टम है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इट इज एन वेल रेगुलेटेड सिस्टम होता है. दैट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ well regulated system होता है. It is well regulated. Even though blood pressure in open circulatory system is less, blood pressure in closed circulatory system is more. Closed circulatory system is more advanced and open circulatory system is less advanced. तो बात करते हैं दोस्तों open circulatory system में क्या होता है, that is heart pumps the blood, heart pumps blood via large blood vessel. शुरू में थोड़े थोड़े large blood vessel होते बस, via large blood vessels directly into a body cavity, known as sinuses. ये कॉन्सेप्ट यही पे है, साइनसेस नाम का कॉन्सेप्ट, जिसमें ब्लड पंप किया जाता है. यह सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही होता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है दोस्तों, दैट हार्ट pumps the blood via network of branched vessels, via network of branched
vessels, okay, into the different, it pumps the heart via network of branched vessels known as दोस्तों known as arteries. Now यहाँ पे जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में that organ और टिश्यू जो भी है, tissues are in direct contact with the blood, are in direct contact with blood, or we can say that, or they bath in blood, they are bathed in blood. But in closed circulatory system जो ऑर्गन और टिश्यू है दोस्तों, ऑर्गन और टिश्यू के बीच में और ब्लड वेसल के बीच में एक टिश्यू फ्लूइड होता है. सो ऑर्गन एंड टिश्यू आर not in contact with, not in direct contact with that is blood, or they do not directly bath in blood. Okay, they do not directly bath in blood. Now ये जो open circulatory system है, this is it is not well regulated. It is the flow of blood is, यहाँ पे जो दोस्तों that blood flow होगा, the blood flow जो होता है, okay, जो blood flow है दोस्तों, blood flow in open circulatory system, blood flow is capital में लिखता हूँ not well regulated, but in case of दोस्तों, in case of open closed circulatory system, ये किससे होता है? This occur through the network of blood vessels. That's why the blood flow is well regulated. कैसा है? Well regulated blood flow होता है. Blood flow is a well regulated. आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और दोस्तों ये है that is a open circulatory system. यहाँ पे है मान लो open circulatory system versus closed circulatory system. ये ज्यादा डेवलप्ड है, मोर एडवांस्ड है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांस्ड. नाउ यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जो फ्लूइड होता है ओपन सर्कुलर सिस्टम में, उसे कहते हैं बॉडी हीमोलिम्फ. सो हीमोलिम्फ क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं मिक्सिंग ऑफ, एज देयर इज अ ओपन सर्कुलर सिस्टम, सो मिक्सिंग ऑफ blood and lymph occur, there is a mixing and blood and lymph occurs to form दोस्तों, to form hemolymph. एक फ्लूइड बनता है उसे कहते हैं hemolymph. is the feature of दोस्तों, याद रखो, open circulatory system, but in closed circulatory system there is a no mixing of blood and lymph, and blood and lymph they are separately circulated. So no mixing of blood and lymph, so there is absence of hemolymph. जो फ्लूइड है वो नहीं होता है, there is absence of hemolymph नाम का जो फ्लूइड है, it will be absent in closed circulatory system. Now जो कैविटी होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसे कहते हैं, जो पूरी कैविटी उसे कहते हैं दोस्तों हीमोसील नाम की कैविटी. हीमोसील is present, a cavity in the hemocoel क्या है दोस्तों, that is blood filled cavity होती है, blood filled cavity. Hemocoel is the blood filled cavity is present. Hemolymph or hemocoel are the feature of open circulatory system. that such hemocoel जो दोस्तों जो blood filled cavity होती है, blood filled cavity, that hemocoel blood filled cavity is absent. hemocoel जो होगी, hemocoel is absent in closed circulatory system,
अगर हम कंपेयर करें तो दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव दोस्तों लो ब्लड प्रेशर, दे हैव लो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होता है, और यहाँ पे जनरली ब्लड प्रेशर है दोस्तों जरा ज्यादा होता है, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम व्हिच हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ फाइलम हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैंने बोला है कैसे याद रखेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऐसे याद रख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप एमबीबीएस सेकंड ईयर में जाते हो तो वहां पे एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स पूरा ड्रग का पढ़ाई होता है, और हर एक ड्रग का एक मैकेनिज्म होता है एक्ट होने का बॉडी के ऊपर। तो कोई भी अगर एग्जामिनर है, अगर उसको वो डिसाइड करके आया कि अभी इस वाइवा में इस बंदे की मुझको बजानी है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेनिसिलिन बोल दो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक पर्टिकुलर वायरल ड्रग पूछेगा जो अनकॉमन है। तो आपको क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसे ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, मान लो कि कुछ इस तरीके से ये सिंबल, ये सर्कुलेटरी का सिंबल होता है, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच। तो एग्जाम्पल जो है दोस्तों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज एम फॉर मोलुस्का, एम फॉर क्या है मोलुस्का, दैट इज ए फॉर आर्थ्रोपोडा, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, याद रखो ए फॉर आर्थ्रोपोडा, और दोस्तों एच फॉर हेमिकॉर्डेटा, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा, और ओ का मतलब है यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ दैट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन दोस्तों, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो याद रखो एनेलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और कॉर्डेटा में दोस्तों इनमें भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनेलिडा ऑनवर्ड, सो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो बचे कौन, इकानोडर्मेटा यहाँ पे नहीं है, तो इकानोडर्मेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन इकानोडर्मेटा। दो यहाँ पे नोट लिख लो, नोट 2 लिखता हूं यहाँ पे। आप बोलेगे सर इकानोडर्मेटा क्या है, तो ब्लड दूसरा सर्कुलर सिस्टम होता है पैरा हिमल और हिमल। सो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं, इज एब्सेंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा में कुछ अलग ही सिस्टम आती है, जब इकानोडर्मेटा आएगा तब पढ़ेंगे। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन इकानोडर्मेटा। नाउ अभी दोस्तों याद रखो, नाउ एक मोलुस्का में एक क्लास आता है, ओके यहाँ पे और बड़ी नोट लिखता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले से भी, और एक है नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 2 लिखता हूं। नोट नंबर 2 ये ऐसी है, हमें पता है दोस्तों कि नो डाउट हमने कहा कि मोलुस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पर मोलुस्का में अलग अलग क्लास होता है, और एक क्लास है सेफेलोपोड्स, जिसका एग्जांपल है मोलुस्का के क्या एग्जांपल है, फाइलम मोलुस्का, पाइला एप्पल स्नेल, सेपिया कटल फिश। ये जो सेपिया है, जो कटल फिश है, दैट बिलोंग टू सेफेलोपोड्स, उसमें ना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। ओके सेफेलोपोड्स, सेफेलोपोड्स ओके of mollusca, cephalopod of mollusca have दोस्तों closed circulatory system, they have closed circulatory system। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cephalopods of mollusca have closed circulatory system, they have closed circulatory system। समझा आप, ये इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखेंगे, सिंपल सी बात है, सेफेलोपोड ये भले ही पूरे बाकी के मोलुस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पर ये मोलुस्का होकर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सेफेलोपोड का एग्जांपल है दोस्तों दैट इज कटल फिश। तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, मैं आपको समझाता हूं। याद रखो दैट इज याद रखो दोस्तों C3 कैसे याद रखेंगे, C3 से कितने सारे निमोनिक्स हमने याद रखे हैं। C3 से क्या निमोनिक्स है, C3 से निमोनिक्स है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन कोरोनल रूट्स ऑफ साइकस, ये एक याद रखा है। सेल में भी एक आता है दैट इज क्रोमैटोफोर, ओके प्रेजेंट इन दोस्तों साइनोबैक्टीरिया एंड दे कंटेन क्लोरोफिल। और एक C3 है जहां पे दैट इज कटल फिश, दैट इज ऑफ सेफेलोपोड्स। कटल फिश नाम का एक एग्जांपल है सेपिया कटल फिश ऑफ क्लास है ये, ऑफ क्लास cephalopods, of class cephalopods have closed circulatory system, they have closed circulatory system। उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है।
तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ट्रिपल सी, ट्रिपल सी, कैसे ट्रिपल सी, तो ये बन गया ट्रिपल सी, दैट इज कटल फिश ऑफ सेफेलोपोड हैव क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम। इज दैट क्लियर? कटल फिश ऑफ सेफेलोपोड हैव क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम। इज दैट क्लियर? ओके, SCUV-C3, ओके, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वाल्वैक्स, चारा, क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला, वो भी है। ओके, और केमिस्ट्री के क्लास का भी नाम है, हमारे दोस्त है चौहान सर, यशवंत चौहान। ओके, C3 तो ऐसे याद रखेंगे। तो कैसा है, निमोनिक्स ऐसे बनाओ कि जो जो चीजें हमारे आसपास हो, जो हमें रोज दिखती हो, यूज दैट नेम टू मेक अ निमोनिक्स, टू मेक अ ट्रिक्स। ओके, सो ये दोस्तों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का चार्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो हार्ट होता है, ये दोस्तों हार्ट क्या है कि मस्कुलर और चेम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखो वर्टिब्रेट में। नाउ टाइटल दूसरा डालेंगे दोस्तों, टाइटल का नाम है दैट इज अ सर्कुलेटरी पाथवे इन वर्टिब्रेट। सर्कुलेटरी पाथवे, types of circulatory pathway in vertebrates, types of circulatory pathway in vertebrates, okay, in the vertebrates ऐसा लिखता हूं क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट भी हो जाता है कभी कभी। सो इन द वर्टिब्रेट, भले इंग्लिश ग्रामेटिकली रॉन्ग होगी पर ये नीट वाइज करेक्ट है। सर्कुलेटरी पाथवे इन द वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट लिखा तो वो इनवर्टिब्रेट भी पढ़ेंगे बच्चे। सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे इन द वर्टिब्रेट। ना वर्टिब्रेट कौन से हमें पता होना चाहिए, वर्टिब्रेट्स का ये क्या है, हमें पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स का दोस्तों कैसे याद रखेंगे, वर्टिब्रेट कौन से हैं, 5 वर्टिब्रेट है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, डिटेल में जाएंगे वहां पे। यहाँ पे सिर्फ हमने लिम्फ नाम का जो फ्लूइड है उसके बारे में बात की है, चाहे तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये होने के बाद, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, जो वर्टिब्रेट है दोस्तों, वर्टिब्रेट के 5 टाइप है। प्लीज क्लोज योर वीडियोस, ओके, आपके वीडियोस बंद कर दो, ठीक है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सोते वक्त मत देखो, ये लेक्चर चल रहा है, आप कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देख रहे जो आपको इंटरटेनमेंट कर रहा हो, ठीक है। मुझे दिखता है कि आप ऐसे सोए हुए हो, ऐसा मोबाइल रखा है, तो ये गलत बात है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, वर्टिब्रेट के लिए दोस्तों याद रखेंगे, सपोज ये वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट किसे कहेंगे, वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिबल कॉलम है उसे कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स के लिए मेरे पास एक निमोनिक्स है, उसे हम कहते हैं दोस्तों दैट इज फार बीएम। मैं क्या बोलता हूं उसे, फार बीएम। फार बीएम मतलब ये सब वर्टिब्रेट है, कौन से, फार बीएम, ये वर्टिब्रेट है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये है वर्टिब्रेट, फार बीएम्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये है वर्टिब्रेट। और इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ यूबी ऐसा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट हैव मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट, वर्टिब्रेट दे हैव मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट, वर्टिब्रेट दोस्तों दे हैव मस्कुलर, ऑल वर्टिब्रेट हैव मस्कुलर एंड मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, चेम्बर होते हैं उनमें, मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट है, दैट इज इन वर्टिब्रेट, मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, दैट इज फार बीएम, फार बीएम। नाउ यहाँ पे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। नाउ व्हाट इज द सर्कुलेटरी पाथवे इन फिश, दोस्तों अगर फिश की बात करें, हम फिश की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा, वन बाय वन लिखता हूं, दैट इज मान लो फॉर एग्जांपल इन फिशेस, फिशेस में दोस्तों फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, 2 ही चेम्बर्ड होते हैं फिशेस के हार्ट में। पहले तो ट्रेलर और फिर बाद में पूरा पिक्चर दिखाऊंगा। फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, और 2 चेम्बर्ड हार्ट में दोस्तों उसमें होगा 1 ऑरिकल या फिर 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है, याद रखो 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। और फिशेस में दोस्तों एक सर्कुलेशन जो होता है वो होता है सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेस में, याद रखो। पहले से मैं बायो फार्मूला बना रहा हूं, they have single circulation and their heart pumps deoxygenated blood। फिशेस का जो हार्ट होता है जो फिशेस का हार्ट ऑफ फिशेस pumps deoxygenated blood, they pumps deoxygenated blood। ये क्या स्टोरी है मान लो, हम बाद में बता देंगे। नाउ दोस्तों अगर मैं बात करूं
ये हो गया फिशेस के बारे में। अभी बात करूं मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल की, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल छोड़ के, क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल। तो दोस्तों इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, ओके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस एंड जो रेप्टाइल है उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, ओके, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है। और जो सर्कुलेशन होता है उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और उनका जो हार्ट है दैट पंप मिक्स्ड ब्लड। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल दोस्तों, दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर होते हैं। और कौन से 3 चेम्बर है? वो चेम्बर दोस्तों 2 होते हैं, 2 एट्रिया। यहाँ पे एट्रिया लिखना गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली एट्रियम, क्योंकि वो सिंगुलर है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए एट्रियम, वो एक ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों दैट इज 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, याद रखो। और जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है एम्फीबियंस और फिशेस में, वो है दोस्तों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों ऐसा कहा गया है हम डिटेल में जानेंगे। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कैसा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इनमें। और दोस्तों इनका जो हार्ट होता है, उनका हार्ट पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड, हार्ट पंप्स आउट कौन सा ब्लड? मिक्स मींस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, और वो ब्लड पंप करता है इनका हार्ट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दोस्तों, यहाँ पे रेप्टाइल को एक एक्सेप्शन है, याद रखो। यहाँ पे रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज दोस्तों, वो जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट था, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नाउ बात करते हैं दोस्तों, अभी बात करेंगे दैट इज अ क्रोकोडाइल्स बर्ड्स और मैमल की, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इनमें कितने चेम्बर वाला हार्ट है? हम है मैमल्स, तो हमें पता है वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। हमें कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। सो वी हैव दोस्तों 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है हमें, 4 चेम्बर्ड हार्ट। उसमें से 2 आर एट्रिया एंड 2 आर वेंट्रिकल, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल है। उसमें से भी 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल है। और हम में मींस क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल जो हम है उनमें कैसा सर्कुलेशन होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, याद रखो। हमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और हमारा जो हार्ट है इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, और जो राइट वेंट्रिकल होता है व्हिच पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दैट हार्ट पंप्स, हार्ट का बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, या फिर मैं डायरेक्टली बोलता हूं हार्ट की बात करेंगे, जो बॉडी को जा रहा है ब्लड, हार्ट पंप्स आउट जो बॉडी को जा रहा है, पंप्स आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप्स आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सब एमसीक्यू है, मैंने ये बायो फार्मूले लिखे हैं, मैंने ये बायो फार्मूले के फॉर्म में लिखा है। अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों, अभी हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। फार भी हम याद रखो, ये बहुत काम आने वाली है चीज जब हम कॉर्डेट पढ़ेंगे, जब हम वर्टिब्रेट पढ़ेंगे, फार भी हम, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस बेटा जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऐसा ब्लड जो हार्ट से टिश्यू को जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस ब्लड में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली आर्टरी जो होते हैं, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जनरली, सभी आर्टरी में नहीं है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे। और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। लिम्फ मध्ये ओपन वगैरे असं नसतं, लिम्फचं वेगळा कॉन्सेप्ट आहे, तुम्हाला नंतर सांगतो, जरा लक्ष द्या थोडंसं. जे चालू आहे ना त्याच्यावर लक्ष द्यायचा प्रयत्न करत चला, जे सध्या तुमच्या समोर बोर्डवर आहे ना त्याच्यावर लक्ष द्यायचा प्रयत्न करा. ही चुकीची वे आहे की तुम्ही बोर्डवर मी वेगळं शिकवताय आणि तुम्ही वेगळे क्वेश्चन विचारताय. दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ओके. ये हमें
तुम्हें ना मुझे, ये दोनों को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाने वाली प्रैक्टिस है। तो जो भी ओके ओके तो प्लीज जो सामने जो दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। और मार्क्सी स्लाइड डोंट ट्राई टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स, ओके, वो बहुत टाइम लगने वाला है। लिखो बच्चों, फिर मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ क्या, पीडीएफ भेजता हूँ, तो जो भी बचा है थोड़ा सा जगह छोड़ दो, क्योंकि बहुत बहुत बाकी भी चीजें हैं जो आपको नोट्स के ऊपर लिखनी है, तो आप वहां पे जगह छोड़ दो और ये आगे जो वाला है वो लिखने की कोशिश करो। प्लीज पे अटेंशन। अगर आपको टाइम दोनों फोकस करना मुश्किल होता है, लिखना और अटेंशन या फिर कॉन्सेंट्रेट करना, तो लिखो मत, जस्ट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दैट इज ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, समझे। ओके, व्हाट इज मीन बाय मिक्स्ड ब्लड, जहां पे ओके बोथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड ब्लड। मैं बोला ना ये ट्रेलर चल रहा है, अभी आपके क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। जब नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। हम एक रूल बनाते हैं तभी मैं आगे जाके पढ़ा सकता हूँ, कि अगर मैंने ये पूरा सिस्टम आपको पढ़ाया है, पूरा पूरा सर्कुलेटरी पाथवे हो गया, मैं बोल रहा हूँ अभी हो गया है, आपको जो भी क्वेश्चन आपको बोलने हैं तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तब जाके आपके क्वेश्चन मुझे आने चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि ये मैंने कवर किया है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट इज मीन बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी मैंने कवर किया है, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये मैं कवर कर दूंगा जब मैं बताऊंगा। पर आप कैसा है कि पिक्चर शुरू हुआ है और आखिरी में कौन मरता है, ओके, ये हीरोइन हीरो का हो जाएगा या फिर ये दूसरे के साथ जाएगी, ओके, आपको क्या लगता है सर। ओके, अगर विलन थोड़ा सा अच्छे भी हो करे तो हीरोइन छोड़ जाएगी क्या हीरो को। तो पिक्चर तो सुनो पहले, आपको सब आंसर मिल जाएंगे, है ना। दैट इज द वे, दैट इज द वे टू लर्न ऑनलाइन, दैट इज द वे टू लर्न ऑनलाइन। पहला टीचर को, और कभी भी टीचर को, इसके पहले भी मैंने बहुत बार बात की है, टीचर को पहले एक्सप्लेन करने दो, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, जो आपका ग्रोइंग ब्रेन है वो हमेशा सोचने लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट सोचते हैं, ओके, थिंक करते हैं। तो ये थिंकिंग रुकनी नहीं चाहिए। पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा बाजू में लिखो, व्हाट इज मीन बाय एम बी म्हणजे मिक्स्ड ब्लड क्या है, डीओ म्हणजे ऑक्सीजन, डीबी मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, समझा, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो आप जो भी मैंने बोला कि अभी हो गया है, अब आपके क्या क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क मी, तो ये समझ जाओ, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ये है, ये क्वेश्चन बायो फार्मूले बनाए हैं। अभी हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन फिशेस, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल, और देन क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल। विद डायग्राम मैं बताऊंगा, ऐसे वैसे नहीं, विद डायग्राम। तो बात करेंगे, टाइटल शुरू करेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सर्कुलेशन, इज दैट क्लियर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सर्कुलेशन। नाउ दोस्तों बात करेंगे, टाइटल डालेंगे दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे इन फिशेस, ओके, टाइटल डालेंगे सर्कुलेटरी पाथवे इन फिशेस, सर्कुलेटरी पाथवे इन फिशेस, इन दोस्तों डालेंगे टाइटल दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे इन फिशेस। फिशेस में कैसा सर्कुलेटरी पाथवे होता है, तो फिशेस में दोस्तों जो हार्ट है, जो हार्ट होगा, फिशेस हाउ दोस्तों जो हार्ट है, दे हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, दे हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, दे हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, मतलब दो ही चेम्बर होंगे, और दैट इज दो चेम्बर होते हैं दोस्तों, दैट इज वन ऑरिकल और एट्रिया कहेंगे, या फिर एट्रियम, या फिर ऑरिकल भी कहते हैं, वन एट्रियम, या फिर इसका दूसरा नाम है ऑरिकल। तो दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, ऑरिकल और एट्रियम, एंड वन वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो एट्रियम है ये रिसीविंग चेम्बर है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। यही पे लिखता हूं कि नोट लिखो कहीं तो भी, नोट ले लो मेरे इस बार, ओके। तो नोट कुछ इस तरीके से है दोस्तों, एट्रियम जो होगा, चाहे वो फिशेस हो, बर्ड हो, कोई भी हो, एट्रियम और एट्रिया ये रिसीविंग चेम्बर है, ये रिसीविंग चेम्बर है, मतलब इट रिसीव द ब्लड, ये रिसीविंग चेम्बर होता है, इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम बॉडी, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मुझे पता है ये छोटे छोटे चीजें शायद आपको पता होगी, पर एक बार रिवाइज करता हूं, इससे रिसीविंग चेम्बर एक नाम है उसका। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं दोस्तों, जो वेंट्रिकल्स है उन्हें कहा जाता है पंपिंग चेम्बर, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाएगा पंपिंग चेम्बर, दे पंप्स द ब्लड, ओके, टू द बॉडी पार्ट, इन्हें कहा जाता है पंपिंग चेम्बर्स, ओके। सो ये जो होते हैं, दे पंप्स द ब्लड, दे पंप्स द ब्लड
to the body part. They pumps the blood to the body part. Okay, to the body part. ये दो चीजें हमें क्लियर होना चाहिए कि ऑरिकल क्या है और वेंट्रिकल क्या है, समझे आप? तो ये जो बात कर रहे हैं हम फिशेस में क्या है दोस्तों, दो ही चेंबर है, एक है दैट इज एट्रियम और दूसरा है दोस्तों वेंट्रिकल। तो बात करते एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है। और ये जो मैंने कहा कि फिशेस जो है दोस्तों कैसे वो मिक्स ब्लड पंप करता है, तो बात करते याद रखो। सपोज मान लो कुछ इस तरीके का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो फिशेस में जो दोस्तों, और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या है ये भी बात करेंगे दोस्तों। दे हैव, फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन, फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन। एक ही बार ब्लड जो है हार्ट थ्रू जाता है, एक ही बार ब्लड हार्ट के थ्रू जाता है, इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अगर ब्लड जब सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में और एक ही बार हार्ट के थ्रू जा रहा है तो उसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। दे हैव सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन होता है उनमें, सिंगल सर्कुलेशन। एंड देयर हार्ट पंप, देयर हार्ट पंप्स, देयर हार्ट पंप्स दोस्तों, पंप्स पंप्स मिक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मैंने लिखा है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बतलाऊं, डायग्राम के थ्रू बतलाऊं, ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे जो है दोस्तों मैं जो लिख रहा हूं, ये जो एट्रिया होता है, एट्रिया, जो एट्रिया है दोस्तों, एट्रिया, चलो दिखाता हूं क्या होता है था। और फिर चाहे तो वापस आते हैं, पहले दिखाता हूं। नाउ मान लो ये है दोस्तों फिश का हार्ट, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। ना प्लीज पे अटेंशन। ओके, कुछ इस तरीके से हार्ट होगा, कुछ इस तरीके से हार्ट होता है दोस्तों। कुछ इस तरीके से। नाउ ये जो चैम्बर है, मान लो दिस चैम्बर, इसे कहेंगे दोस्तों वेंट्रिकल। ये जो चैम्बर है इसे कहते हैं वेंट्रिकल है। ये है वेंट्रिकल और ये है एट्रियम। सिंपल, ये है वेंट्रिकल और ये है एट्रियम। नाउ यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे दोस्तों है बॉडी पार्ट और टिश्यू। यहाँ पे क्या है अपना बॉडी पार्ट और टिश्यू। मान लो यहाँ पे है बॉडी पार्ट और टिश्यू, बॉडी पार्ट और टिश्यू। नाउ होता क्या है, फिशेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है दोस्तों, जिस स्ट्रक्चर का नाम है जिसे हम कहेंगे गिल्स। जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, गिल्स। देखो यहाँ पे होते हैं गिल्स। ओके, कुछ इस तरीके से मान लो ये है गिल्स। ओके, और फिर इस गिल्स से यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो गिल्स, और गिल्स में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। गिल्स में होता है दोस्तों ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। गिल्स में क्या होगा, these are gills for they help in for oxygenation of blood। जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, वो ऑक्सीजन गिल्स में आता है और वो फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है। सो ये जो वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ है, और ये है दोस्तों यहाँ पे मान लो ये है टिश्यू, यहाँ पे मान लो ये है टिश्यू। नाउ यहाँ पे, नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ये टिश्यू से जो ब्लड जाएगा ना दोस्तों, ये टिश्यू से ब्लड जाता है ऐसे इधर, टिश्यू से ब्लड जाएगा मान लो कहाँ पे, टिश्यू से ब्लड की डायरेक्शन देखो कहाँ पे जा रहा है टिश्यू से ब्लड, इट गोज टू दोस्तों एट्रियम। एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू। सी दिस, एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, और ये ब्लड सीधा गया कहाँ पे, एट्रियम में। ओके, ये ऐसा ब्लड फ्लो है। ओके, ये ऐसा है एट्रियम से। और जो टिश्यू है, टिश्यू प्रोड्यूसेस
ये जो है दोस्तों टिश्यू, दे हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जरा अलग तरीके से दिखाता हूं, अलग तरीके से दिखाता हूं। टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मान लो ये पेन यूज करेंगे, ब्लू फॉर डीऑक्सीजनेटेड, रेड फॉर ऑक्सीजनेटेड। ब्लू फॉर डीऑक्सीजनेटेड, रेड फॉर ऑक्सीजनेशन। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फ्लो हो रहा है कहां से कहां तक? वाया फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। दिस इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और रिसीव कौन सा चैम्बर कर रहा है? रिसीविंग चैम्बर इज एट्रियम। रिसीविंग चैम्बर कौन सा दोस्तों? ये एट्रियम है। इसे कहते हैं, ये जो ब्लड है दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे कहते हैं डीबी। नाउ यही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही ब्लड फिर कहां जा रहा है? वेंट्रिकल में। ना वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप हो रहा है दोस्तों, ये भी तो कौन सा ब्लड है? वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है ये भी तो कौन सा ब्लड है? ये भी तो दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो है। वेंट्रिकल पंप्स आउट डीबी ब्लड, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ब्लड हार्ट में कुछ हुआ है क्या? नहीं। नाउ ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजनेशन ये है गिल्स। गिल्स में होता है ऑक्सीजनेशन, और फिर दोस्तों वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाएगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ दिया जाता है? दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द टिश्यू। सी दिस। नाउ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोस्तों, ये टिश्यू को सप्लाई किया जाता है वाया वेंट्रिकल्स। और ये देखो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे सप्लाई किया जाता है? इट इज सप्लाई टू दोस्तों टिश्यू वाया वेंट्रिकल्स। आप मान लो एक है या दो है, मैंने दो आर्टरी निकाले हैं, तो आप ये समझ लो ये ऐसा डायरेक्शन है। नाउ दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ दोस्तों, ये जो फ्लो है दिस इज एन डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेशन कहां पे हो रहा है? इट ऑकर इन द गिल्स। दिस इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता है इन फिशेस दैट इज गिल्स, और सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, है ना? सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ये कौन सा ब्लड है दोस्तों? दिस ब्लड इज ओबी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? सो ये है टिश्यू। टिश्यू क्या करेंगे? ऑक्सीजन यूज करते हैं, और ऑक्सीजन यूज करने के बाद टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, और वो दे सिंथेसाइज CO2। दैट CO2 इज कैरिड वाया दिस वेसल्स एंड इट इज रीचेस द हार्ट। ये हार्ट है, तो हार्ट का ये कौन सा चैम्बर है दोस्तों? ये है मान लो एट्रियम। ये रिसीविंग चैम्बर है, ये एट्रियम रिसीविंग चैम्बर है। इट रिसीविंग व्हिच ब्लड? डीबी ब्लड। फ्रॉम एट्रियम से ब्लड गोज टू दोस्तों, एट्रियम से ब्लड गोज टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, तो ये है वेंट्रिकल, और एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली वेंट्रिकल पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है? और किस में पंप कर रहा है? दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू कौन सा स्ट्रक्चर? इट गोज टू गिल्स। गिल्स में उसका ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और फिर गिल्स से दैट ब्लड गोज टू दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी टिश्यू। फिर वो ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू यूटिलाइज करेंगे, और फिर से वो ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय एट्रियम, इट गोज टू वेंट्रिकल, अगेन वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू गिल्स। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ऑक्सीजनेशन मींस मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीजनेशन मींस दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर का ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिक्स होना, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। समझे? ये क्लियर है? दिस इज एन कॉन्सेप्ट। तो हम अभी बात कर सकते हैं दोस्तों, तो जो मैंने बोला था फिशेस में, हम किसकी बात करें? वी आर डीलिंग विद दोस्तों फिशेस। हम बात कर रहे हैं फिशेस में। कितना फिशेस में? आप मुझे बोलो कितने चेंबर है फिशेस में? कितने चेंबर है फिशेस में? कितने चेंबर दोस्तों बोलो? फिशेस में होंगे कितने चेंबर? फिशेस में है टू चेंबर्ड हार्ट। फिशेस में दोस्तों मैं अगर बात करूं तो ये होगा 2C में बोलता हूं, 2 चेंबर्ड हार्ट है फिशेस में, 2 चेंबर्ड हार्ट है। ओके, और फिशेस में 2 चेंबर्ड हार्ट है। और दोस्तों याद रखो, इसका वेंट्रिकल कौन सा ब्लड पंप कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और कैसा सर्कुलेशन? एक ही बार हो रहा है सर्कुलेशन, एक ही बार हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो वाया हार्ट ओनली वंस, इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसे कहते हैं दोस्तों
सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन है, विशेष में सिंगल सर्कुलेशन होता है, याद रखो सिंगल सर्कुलेशन होता है। और कैसा है, दैट इज अ दोस्तों इनका जो वेंट्रिकल्स है, हमेशा याद रखो वेंट्रिकल और हार्ट पंप्स विच ब्लड, हार्ट कौन सा ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट पंप्स, बोलो दोस्तों हार्ट पंप्स विच ब्लड, हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा ब्लड, हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दैट क्लियर? इसे कहते हैं, ये तीन शब्द याद रखो, 2C सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ये हो गया फिशेस में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल में, और उसमें दो एट्रिया कैसे होते हैं बात करेंगे, और दो वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं याद रखो, बात करेंगे। ओके चलो, नाउ थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं, समझे? तो नाउ यहां पे जो है दोस्तों, गिल्स आर द ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, दे हेल्प इन ऑक्सीजनेट ब्लड। और गिल से सर्कुलेशन कैसा है दोस्तों, सर्कुलेशन कैसा अगर बात करेंगे तो सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से है। मान लो फॉर एग्जांपल ये है दोस्तों, मान लो एक एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल्स, मैं यहां से बात करता हूं, मान लो ये है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड चला कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है गिल्स की तरफ, कहाँ जाता है, गिल्स की तरफ। वेंट्रिकल से ब्लड डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाता है, पहले वो गिल्स की तरफ जाएगा, याद रखो। गिल्स से फिर ब्लड कहाँ जाता है, वाया फ्रॉम गिल्स दैट ब्लड गोज टू कहाँ जाएगा दोस्तों, नाउ वाया गिल्स ब्लड गोज टू दैट इज डायरेक्ट बॉडी, कहाँ जाएगा, बॉडी खो जाता है, कहाँ जाएगा, बॉडी खो जाता है। और बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है दोस्तों, बॉडी से ब्लड जाता है एट्रियम में, बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है, एट्रियम में, याद रखो। कहाँ जाएगा, बॉडी से ब्लड इज रिसीव्ड बाय एट्रियम, एट्रियम से ब्लड गोज टू वेंट्रिकल। और ये है सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट में एक ही बार आ रहा है, हार्ट में एक ही आ रहा है, गिल से शुरू यहाँ से करते हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट विथ फ्रॉम दिस, वेंट्रिकल से गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से एट्रियम, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल। समझे या नहीं, समझे या नहीं, यस और नो, यस और नो। और यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखोगे तो वेंट्रिकल पंप्स व्हिच ब्लड, डीबी ब्लड्स, वेंट्रिकल पंप्स आउट व्हिच ब्लड, डीबी ब्लड्स। नाउ गिल्स कौन सा ब्लड पंप कर भेजते हैं, पंप्स नहीं करते पर भेजते हैं, कौन सा ब्लड, ओबी मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है। फिर बॉडी एट्रियम को कौन सा ब्लड पंप कर रही है, फिर से ये कौन सा ब्लड है दोस्तों, डीबी, सॉरी कौन सा ब्लड है, दैट इज डीबी ब्लड दोस्तों, कौन सा ब्लड है, डीबी ब्लड। और फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीबी ब्लड। समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर है, इज दैट क्लियर हो, पिक्चर क्लियर है क्या नहीं? ये डायग्राम, हर एक डायग्राम बोलती है आपसे, हर एक एनसीईआरटी की फिगर आपसे बात करना चाहती है, पर आपका वो मूड चाहिए, वो क्या बोल रही है वो सुनना चाहिए। दिस इज एन हाइपोथेटिकल डायग्राम दोस्तों, याद रखो। सो दिस इज एन सिंगल सर्कुलेशन फिशेस, फिनिश। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों डबल सर्कुलेशन की, और टाइम तो हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता ही नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता ही नहीं है। आप बोलोगे सर फिर हार्ट को सप्लाई कैसे होता है, टिश्यू मतलब वो हार्ट की भी टिश्यू है, ठीक है। मैं एक दूसरा सर्कुलेशन समझाने की कोशिश करता हूं, मैं दूसरा सर्कुलेशन समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास टाइम है, वैसे तो टाइम हो चुका है, पर आपके पास है 10 मिनट, मैं समझाता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि इन आपको तो डबल सर्कुलेशन पता है हार्ट में, आपने सुना होगा ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है। मैं सिर्फ पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। क्या होता है देखो, होता क्या है कि बात करते हैं दैट इज इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल, एम्फीबियंस और रेप्टाइल की, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल की, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में रेप्टाइल होके भी वो उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ना इनमें क्या होता है दोस्तों, इनका निमोनिक्स में कहूं तो इनमें होता है 3CH मींस 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3CH 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या है दोस्तों, 2 एट्रिया है, 2 एट्रिया, ओके, दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, एम्फीबियंस में कैसा है, they have 3 chambered heart, they have 3 chambered heart, they have 3 chambered heart, ओके, ये बात है। नाउ दोस्तों उनमें क्या होता है, their ventricle pumps out mixed blood, their ventricle
पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड। वो मिक्स कैसे होता है ये देखेंगे, पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड। वो मिक्स कैसे होता है तो ये देखेंगे, मिक्स्ड ब्लड, दे पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड। ओके, और इनमें दे हैव दोस्तों, दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो है पर इनकम्प्लीट है। हार्ट में 2 बार ब्लड आएगा पर इनकम्प्लीट होता है। दे हैव डबल सर्कुलेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, मींस उसमें भी 2 एट्रिया है, उसमें भी 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है, उसमें भी 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। नाउ जरा आगे चल के बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों। आपको पता है एट्रिया इज रिसीविंग चेंबर। जो राइट एट्रियम होता है, हमेशा याद रखो, जो राइट एट्रियम रिसीव, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट लिखो राइट एट्रियम रिसीव deoxygenated blood from the body. It receive deoxygenated blood from the body, from the body. Okay, ये राइट एट्रियम रिसीव करेगा। लेफ्ट एट्रियम जो होता है दोस्तों, इनका लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस जिसमें ऑक्सीजन है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम। नाउ यहाँ पे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन अलग अलग है एम्फीबियंस और रेप्टाइल में। इट में भी दोस्तों 3 टाइप के होंगे, दैट इज गिल्स भी हो सकते हैं, गिल्स, स्किन और लंग्स। ये 3 ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं खास करके एम्फीबियंस में। एंड these 2 blood, okay, these 2 blood get mixed. These 2 blood, 2 types of blood, these 2 types of blood, okay, blood enter into the single ventricle, जो कि एक ही ventricle, enter into the single ventricle and get mixed, ventricle and get mixed there, and get mixed. So the ventricle pumps out mixed blood. So the ventricle pumps out mixed blood. Ventricle pumps out mixed blood. अभी समझ में आएगा, एक डायग्राम निकालता हूँ, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन है दोस्तों, फिर से लिखता हूँ, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मुझे डायग्राम निकालनी पड़ेगी, जरा आप ध्यान दे दो। एक डायग्राम निकालता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मान लो दोस्तों, मान लो कि ये है एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। मान लो ये है वेंट्रिकल, ये है वेंट्रिकल, ओके, ये क्या है? वेंट्रिकल। दिस इज वेंट्रिकल, वी वेंट्रिकल। नाउ इस वेंट्रिकल में दोस्तों यहाँ पे जुड़े हुए हैं 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे जुड़े हैं 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। मान लो कि एक है लेफ्ट और एक है दोस्तों राइट। मान लो यहाँ पे बात करते हैं, ये है राइट एट्रियम दोस्तों, मान लो ये है राइट एट्रियम, ओके, दिस इज एन राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस इज एन राइट एट्रियम, और यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ये है लेफ्ट एट्रियम, ओके। ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज दोस्तों एल ए कहते हैं उसे, एल ए म्हणजे लेफ्ट एट्रियम। दिस इज एन आर ए मीन्स राइट एट्रियम, आर ए मीन्स राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल तो एक ही है। नाउ होता क्या है यहाँ पे होता क्या है, नाउ ये जो राइट एट्रियम है दोस्तों, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है टिश्यू, यहाँ पे है बॉडी टिश्यू, यहाँ पे है बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू में दोस्तों क्या हो रहा है? बॉडी टिश्यू में क्या होता है? हमेशा याद रखो, बॉडी टिश्यू में ना ब्लड
या फिर यहां लिखता हूं बॉडी टिश्यू, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, ये है बॉडी टिश्यू, यही अच्छा है। सो इस बॉडी टिश्यू से क्या होता है, दिस बॉडी टिश्यू से दोस्तों, दिस राइट एट्रियम इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट रिसीव द डीबी ब्लड। कौन सा ब्लड दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट रिसीव द deoxygenated blood from the body tissue. Now this deoxygenated blood दोस्तों, it is received by right atrium and from right atrium it goes to the ventricle, it goes to the ventricle. Now ये जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों मान लो lungs, सॉरी लेफ्ट एट्रियम। नाउ ये जो लेफ्ट एट्रियम है, मान लो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ पे है दोस्तों गिल्स, यहाँ पे है स्किन और यहाँ पे है लंग्स, तीन डिफरेंट ऑर्गन है। मान लो ये है गिल्स, गिल्स यहाँ पे, या फिर हो सकते हैं गिल्स है, या फिर दोस्तों है स्किन, या फिर हो सकते हैं लंग्स। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन हो सकते हैं, स्किन, लंग्स, गिल्स और लंग्स, स्किन और गिल्स। नाउ ये जो है याद रखो, ये जो है लेफ्ट एट्रियम इट रिसीव इन तीनों ऑर्गन से, दीज आर द ऑर्गन ऑफ दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। नाउ दीज आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो है दीज आर दे हेल्प इन, ये जो ऑर्गन है दे हेल्प इन दोस्तों, हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये तीनों ऑर्गन दे हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। किसमें सिर्फ गिल्स होंगे, किसमें सिर्फ स्किन, तो किसमें सिर्फ लंग्स होंगे। सो दे हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। नाउ ब्लड का फ्लो कैसा है, यहाँ से फ्रॉम गिल्स, स्किन और लंग्स, ओके, दैट लेफ्ट एट्रियम जो है हमारा इट रिसीविंग दोस्तों व्हिच ब्लड, इट रिसीविंग व्हिच ब्लड, इट रिसीविंग oxygenated blood. Now both this oxygenated blood from the left atrium and deoxygenated blood from the right atrium both are pumped into, ये क्या दोस्तों, this is an ventricle। ये क्या है, ये है ventricle। लोगों को ये भी पता नहीं रहेगा ये क्या है दोस्तों, ये है, लिखता हूं बाबा नो, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम देखो, और ये क्या है, ये है आर्य मतलब राइट एट्रियम, आर्य मतलब राइट एट्रियम, समझे आप, आर्य मतलब राइट एट्रियम। और ये जो है यहाँ से दोस्तों जो वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है, ये कौन सा ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, ये मिक्स हुआ है। तो ये ब्लड कौन सा है दोस्तों, दिस इज एन मिक्स्ड ब्लड, दोनों मिक्स हुआ है, मिक्स्ड ब्लड पंप्ड बाय, मिक्स्ड ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट। और ये ब्लड पंप करने के बाद जाएगा कहाँ पे, ये ब्लड जाएगा कहाँ पे दोस्तों, तो ये ब्लड जाएगा, याद रखो, बॉडी को, कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ। दिस ब्लड गोज टू दोस्तों बॉडी पार्ट, दिस ब्लड गोज टू टिश्यू, दिस ब्लड गोज टू, कहाँ जाएगा, टिश्यू को जाएगा, टिश्यू में भी वो इसको भी जा सकता है, किसको, इधर भी जाएगा गिल्स को, पर ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा दोस्तों टिश्यू को। ये मिक्स ब्लड जाता है, समझे आप। आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझे या नहीं, इज दैट क्लियर हो, इज दैट क्लियर हो, समझे। यस, ये होता है, इसे कहते दोस्तों, दो बार तो ब्लड आ रहा है, देखो यहाँ पे एक बार ब्लड आ रहा है, दिस इज एन, ये एक बार ब्लड आ रहा है, ये हो गया दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और यहां से दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दो बार तो आ रहा है पर ब्लड मिक्स हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन तो है पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। हार्ट में ब्लड दो बार आ रहा है, पर यहाँ पे दोस्तों ये कैसा है, मिक्स्ड सर्कुलेशन है, इसे कहते हैं, और मिक्स्ड ब्लड हो रहा है इसलिए इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन जब होगी, समझेगा तो आपको समझेगा कि ये इसे इनकम्प्लीट क्यों कहा गया है। अभी क्लियर है। ये ब्लड मिक्स होने वाला है तो फिर वो नहीं, ये यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये यहाँ पे आके मिक्स हुआ है। यहाँ पे वेंट्रिकल में क्या हो रहा है दोस्तों, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में हो रहा है एक प्रोसेस हो रही है जिसका नाम है दोस्तों, वेंट्रिकल में एक प्रोसेस हो रही है जहां पे जिसका नाम है दैट इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहां पे हो रहा है, इट ऑकर इन वेंट्रिकल्स। मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहां पे हो रहा है, इन वेंट्रिकल्स, समझे। ओके, ते वॉल वगैरे सगळं असतं त्याच्यामध्ये, त्या वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल इन स्ट्रक्चर, वी आर यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की नहीं। वॉल वगैरह होते हैं वो बाद में बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम डील करेंगे तब। ओके, टाइम झालेला आहे मला माहिती आहे, आय नो दॅट। ऋतुजा बेटा माझ्याकडं
दिमाग आहे, क्लॉक आहे माझ्याजवळ, टाइम झालेला आहे हे मला माहिती आहे ना. तुम्हाला पहिलाच प्रश्न विचारला होता तुमच्याकडे वेळ आहे का, तर मी थोडंसं 10 मिनिटं घेतो. आता तुम्ही विचारा तुमचे काय प्रश्न असतील तर. उद्याच्याला बोलूया कंप्लीट डबल सर्क्युलेशन काय असतं, जे की आपल्यामध्ये आहे, बर्ड्स मध्ये, मॅमल मध्ये, हे तुम्हाला कळते. ओके, दिस इज एंड क्या है दोस्तों, दिस इज किसमें है ये, दिस इज एंड ये है दोस्तों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की डायग्राम है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की. ओके ओके, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल. कल बात करेंगे हमारे बॉडी में जो है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो रुकते हैं आज यहीं पे. ओके डन. चलो बाय. काल काल है कॉन्सेप्ट करते हैं, याद रखो, बहुत ही बढ़िया. चलो, डिऑक्सिजन ब्लड बाहेर नाही जाणार का, बाहेर कुठं जाईल, बाहेर नाही जाणार बेटा. बाहेर म्हणजे कुठं जाईल मला समजलं नाही तुमचा काय प्रश्न आहे. ओके, थँक्यू सौरभ, थँक्यू. इनकम्प्लीट डबल सर्क्युलेशन अफेक्ट द ब्रीदिंग रेट. ओके, म्हणजे अँफिबियन्सच्या बॉडी टिश्यू म्हणजे मिक्स ब्लड असतं का, यस, त्यांना मिक्स ब्लड भेटतं. नहीं ऐसा कुछ that incomplete double circulation is not related with the habitat beta Ayush, it is not related with the habitats. Okay, respiration is related with the habitat, circulation is not related with the habitat, respiration is related with the habitat. याद रखो कैसे, अगर aquatic habitat है तो via gills, अगर terrestrial habitat है तो via lungs. ओके सर, फिशेस मध्ये आरबीसी असतात का, यस असतात की फिशेस मध्ये आरबीसी, हिमोग्लोबिन वगैरे सगळे. ठीक आहे, सगळ्या कॉर्डेट मध्ये आहे ते. CO2 is present in deoxygenated blood or oxygen is present in oxygenated blood. What is the function of heart? विधि मंत्री और हर एक ऑर्गन में, हर एक ऑर्गेनिज्म में फंक्शन ऑफ हार्ट इज लाइक अ वाटर पंप. जो पंप, वाटर पंप की जो मोटर होती ना, पाण्याची जी मोटर आहे तिचं काय फंक्शन आहे, पंपिंग ऑफ द वॉटर. हर एक हार्ट का यही फंक्शन है, पंपिंग ऑफ ब्लड. हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि पंप म्हणजे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये काम होता है हार्ट का, नहीं, ये काम है लंग्स का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का. हार्ट का काम है पंपिंग, पंप करना. ओके, ये चालू रहता है ऐसा, और ऐसा पंप करने के बाद वो सर्कुलेशन, अगर पंप नहीं होगा तो स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा. तो पंप करने के बाद, ओके, पंप करने के बाद दोस्तों क्या होता है, जब हम पंप करेंगे तो वो ब्लड फ्लोर में रहता है. पंपिंग ऑफ द ब्लड इज द फंक्शन ऑफ हार्ट बेटा, हर एक ऑर्गन में. ठीक है, लिम्फ पाथवे 3 ऑगस्ट मध्ये उद्या होईल का जम्बो टेस्ट, उद्याच होईल. ठीक आहे, बॉडीच्या बाहेर डिऑक्सिजनेटेड ब्लड नाही जाणार का, नाही जाणार बेटा, हा नाही जाणार. CO2 डिऑक्सिजनेटेड ब्लड मध्ये असतो. लिम्फ एक्सप्लेन केलेले मनीषा, एकदा बघा तुम्ही कालच्या नोट्स मध्ये. व्हॉट इज नेफ्रिडिया बेटा, अक्षय, नेफ्रिडिया दीज आर द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन इन एनिलिड. उस एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल ट्यूब होती है, उसे नेफ्रिडिया बोलते हैं. वॅझोडायलेटर आणि ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टर एक्सप्लेन करा. सिंपल आहे, वॅझोडायलेटर म्हणजे जे ब्लड व्हेसलला डायलेट करतात त्याला म्हणायचं वॅझोडायलेटर, आणि ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन म्हणजे जे ब्रॉन्कसला कन्स्ट्रिक्ट करतात. लक्षात ठेवा, समजा हा नॉर्मल डायमीटर आहे बेटा, दिस इज अ नॉर्मल डायमीटर, तर हा जर छोटा झाला तर याला म्हणायचं कन्स्ट्रिक्शन होणे. ठीक आहे, एवढाच झाला तर, हा छोटा झाला तर कन्स्ट्रिक्शन, हा जर वाढला तर त्याला म्हणायचं डायलेटेशन झालं. ठीक आहे, हे असं असतं. वॅझोडायलेटर म्हणजे असे ड्रग्ज आहेत, दे कॉजेस डायलेटेशन ऑफ ब्लड व्हेसल, त्याचा ल्युमन वाढेल, त्याचा आकार वाढेल. आणि ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन म्हणजे ब्रॉन्कसचं कन्स्ट्रक्शन होईल. आणि वॅझोडायलेटर आणि ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टर असणारं एक केमिकल आहे आपल्या बॉडीमध्ये, त्याचं नाव आहे हिस्टामाइन. हिस्टामाइन इज अ वॅझोडायलेटर आणि ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टर आहे. लक्षात ठेवा, हिस्टामाइन काय, वॅझोडायलेटर एज वेल एज ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टर आहे. हिस्टामाइन इज वैज़ोडायलेटर एज वेल एज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, ये आपको पता होना चाहिए. जो हिस्टामाइन है बेटा, ये वैज़ोडायलेटर है, कॉजेस डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल. वैज़ो म्हणजे ब्लड वेसल, डायलेटर म्हणजे डायलेटेशन, आणि ब्रोंको म्हणजे ब्रोंकस. सो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है.
इस अगर मैंने ये पूरा बोर्ड यूज किया ये दो शब्द लिखने के लिए, हिस्टामाइन का फंक्शन, वासोडाइलेटेशन एज वेल एज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इफ इट डज नॉट गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट ऑल? मर जाएंगे बेटा, हाँ मर जाएंगे। ओके, तो आप बोलेगे कि ऑक्सीजनेटेड जो मिक्स्ड ब्लड है ना उसमें कुछ ऑक्सीजनेशन है ना बेटा, पर कम है ऑक्सीजन, इसलिए वो थोड़ा सा स्लगिश होते हैं, स्लो होते हैं, हमारे जैसे फास्ट नहीं है, उनमें डेव्हलपमेंट नहीं है, या ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक आहे, बॉडीच्या बाहेर डिऑक्सिजन ब्लड नाही जाणार का? अरे 4दा सांगितलं, आता हा प्रश्न नको विचारू, हा नाही जाणार बेटा, मला तुझा प्रश्नच कळाला नाही। पहिली गोष्ट तर वेर CO2 इन DB गोज इन फिशेस, बाहर जाएगा बॉडी के बाहर बेटा, CO2 गोज टू द बाहर, बॉडी के बाहर जाता है, वाटर में जाएगा। ठीक है, लिम्फ नोड म्हणजे एक नोडुलर स्ट्रक्चर असतं बॉडीमध्ये, त्याला लिम्फ नोड म्हणतात, लाईज अलॉंग द ब्लड वेसल्स। ओके, त्याला लिम्फ नोड म्हणतात, जिथं लिम्फॅटिक लिम्फोसाइट वगैरे तयार होतात किंवा स्टोअर केले जातात। गिल्स मध्ये कोण ब्लड पंप करतो? तर हार्ट, व्हेंट्रिकल। मनीषा बेटा दिलेलं आहे ना, तुम्ही तुमचे डाऊट जे विचारण्याची पद्धत चुकीची आहे, ह्याला मी अशा ह्याला हे दीज आर द नॉट डाऊट, ऍक्च्युअली यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द लेक्चर, दॅट्स वाय देर आर डाउट्स। इथं मी क्लिअर मेन्शन केलं बघा तुम्ही, तिचा प्रश्न गिल्स मध्ये कोण ब्लड पंप करतं, हे बघा वेंट्रिकल्स, समजतंय वेंट्रिकल्स, आणि मग पुन्हा गिल्स कडनं ते इकडे तिकडे चालले, कुठून चालले ब्लड? वेंट्रिकल मधनं, हार्टच पंप करणार आहे ना। ही डायग्राम व्यवस्थित बघितली की तुम्हाला कळायला लागेल। ठीक है, हाँ, व्हाट कॉजेस हिमोलाइटिक एनीमिया? बहुत सारी चीजें बेटा, जैसे कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, जहां आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। हिमोलाइटिक एनीमिया, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में जो एनीमिया है वो हिमोलाइटिक एनीमिया ही है। बहुत सारे ऐसे कॉजेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होता है। ओके, हिमोलाइटिक एनीमिया उसमें होगा। लैक्टियल मीन्स, मनीषा बेटा लैक्टियल्स का मतलब ये है, एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुआ है क्या? तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल होते हैं, उसे कहते हैं लैक्टियल्स, एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और लिपिड्स, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड लिपिड्स। सर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ में हो तो कुछ रिएक्शन नहीं होता? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। टिश्यू को जो चाहिए वो ले लेंगे। अगर मिक्स ब्लड पंप करता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल का हार्ट, तो उसमें ऑक्सीजन भी तो है, तो वो टिश्यू ऑक्सीजन ले लेंगे सर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले लेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अच्छे मार्क्स है बेटा सनवी, ये बुरे मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छे हैं। ओके, तो फिर से कोई भी अगर करना पढ़ना है तो अपने जो क्लास नोट्स है उसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है, क्लास नोट्स को रिवाइज करो। पहले तो मैं आपको ये भेजता हूँ PDF, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चलो।